till now I have uploaded two videos of this chapter only, that is chapter number 3, animal fibers. Okay, so in the last video we have discussed about how the production of wool is taking place. Means कि हमारी जो wool हमको जो मिल रही है वो wool से लेके कपड़े तक का जो सफर है, we have studied that particular process, the production of wool in 7 steps. Okay, so before going to the next topic, let's recall what we have studied in the last video. So we have studied about 7 steps of production of wool. Okay, so the first one was shearing means sheep के बाल उतारना, that can be done using razors or clippers. Second one, without hurting the sheep. Second one was scoring, where the wool is being washed with soap water. हम लोग क्या करते थे, कुछ wool जो हम लोगों को मिलती थी sheep से, हम उसको पानी में soap water में धोते थे ताकि whatever the dirt is there, grease is there, it can be easily removed. Third process was the grading. According to the quality of the wool, we need to separate two different type of wool, and the best quality wool is used for making clothing, and the coarse or the rough quality of wool was used for making the carpets. The next step was the carding, where the wool fibers are being straightened into parallel threads. वहाँ पे क्या होता था, हम लोग wool को straight करने का काम करते थे ताकि हम लोग उसको बाद में thread में easily convert कर सके. उसके बाद हमारा next step था spinning. वहाँ पे जो हमारे parallel threads है उसको हम लोग yarn में convert करने का काम करते थे. After that the process was dyeing, means dipping the wool into different colors. जो आप लोगों को कलर्स चाहिए होता था हम लोग wool को उसमें डिप कर देते थे, so that we get a variety of colors in that particular wool things or the woolen clothes. And the last step was the knitting में क्या करते थे हम लोग, एक बार हमारे पास threads आ गए बन के, अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो knitting needles होती है उससे हम लोग स्वेटर्स वगैरह बुन लेते थे, या फिर वो पर्टिकुलर जो threads है वो किसी भी इंडस्ट्रीज में चले जाते थे ताकि हमारे woolen clothes बन सके. So these all are the steps we have studied about. These all were the information related to the wool. Okay, now the second fiber we are going to discuss is about the silk. पहला जो fiber animal fiber हमने discuss किया था, it is all about the wool and the sheep. Now we are going to discuss mainly about the silk. Okay, so as you all know that silk we are getting from where, silk हमको मिल कहाँ से रहा है, so silk we are getting from the silkworm. Okay, now in this video we are going to study the life cycle of silk moth. हम लोग क्या पढ़ेंगे, life cycle of silk moth. Okay, so there are 4 different stages. पूरे silk moth के life cycle में 4 stages होती है. I am going to tell you all these 4 stages in detail right now only. So the first stage is the egg stage. What happens? See, this is the egg stage. Okay, so what happens in the egg stage? Female silk moth जो होती है, it lays about 300 to 400 eggs. कितने देती है? 300 से 400 egg वो एक टाइम पे ले करती है. And in warmer condition and in better climatic condition, what happens? It hatch within 7 to 14 days. 300-400 एग देने के बाद क्या होता है, एकदम वार्म कंडीशंस में वो जो एग्स हैं वो हैच हो जाते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. ऑब्वियसली पूरा अडल्ट बनने के लिए स्टार्टिंग तो एग से ही होगी. सो अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज अराउंड 300 to 400 eggs at a time, and within 7 to 14 days the egg hatches. So this is the first stage of the life cycle of silk moth. Okay, so now what happens, moving on to the next stage. As soon as the egg hatches, a larva comes out of it, means a silkworm comes out of it. This is, and the silkworm is called as the larva, and this stage is called as the larval stage. एग में से क्या होगा, हमारा silkworm निकल के आएगा, क्रॉल करते हुए आएगा, and this stage is called as the larva stage. Now what happens, अब ये सिल्कवर्म या फिर लार्वा निकल के आ तो गया है, बट फॉर इट्स फीडिंग कुछ तो चाहिए होगा ना खाने के लिए ताकि ये आगे ग्रो कर सके, आगे एडल्ट में चेंज हो सके. सो फर्स्ट एट द इनिशियल स्टेज इट फीड्स ऑन टेंडर मलबरी लीव्स. किस पे वो फीड करता है, मलबरी लीव्स पे. एंड टेंडर, सी क्योंकि कैटरपिलर अभी ही निकल के बाहर आया है, उसकी ग्रोइंग स्टेज अभी शुरू हुई है. सो इन द स्टार्टिंग स्टेज क्या होता है, वो टेंडर मलबरी लीव्स पे फीड करता है. जो एकदम सॉफ्ट होते हैं ना उन्हीं को वो खा सकता है. एकदम रफ वाले मलबरी लीव्स को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता या फिर नहीं खा सकता. और स्टार्टिंग वो वहां से करता है, उसके बाद धीरे धीरे
धीरे उसकी कैपेसिटी खाने की बढ़ती जाती है और जैसे ही वो खाता रहता है उसकी ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। शुरू में वो सॉफ्ट मलबरी लीव्स ही खा सकता था और उसके बाद क्या होगा, वो एकदम रफ एंड कोर्स वाले मलबरी लीव्स भी खा सकता है। सो दिस इज हाउ द कैटरपिलर ग्रोज इन साइज। अब एग हो गया, एग से हमारा लार्वा निकल गया, यहाँ पे उसने अपनी फीडिंग भी शुरू कर दी मलबरी लीव से। नाउ here it ends the larval stage ends, यहाँ पे हमारी लार्वा वाली स्टेज खत्म हो गई है। Now let's move on to the cocoon stage, यहाँ पे क्या होता है, प्यूपा स्टेज। अब जैसे कि कैटरपिलर जो भी हमारा जो लार्वा है वो काफी उसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी होगी। नाउ व्हाट विल हैपन, it will form a web like structure around itself। वो क्या होगा, अपनी ही बॉडी के आजू बाजू वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू करेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपनी बॉडी की सपोर्ट के लिए। सो इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ वेब लाइक स्ट्रक्चर अराउंड इट्स बॉडी एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट secreting a fine protein filaments। उसके बाद क्या करेगा, वो फाइन प्रोटीन फिलामेंट्स अपने आजू बाजू निकालना शुरू करेगा और अपनी बॉडी को पूरा कवर अप कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे ये फिलामेंट्स है यहाँ से स्टार्ट हुए तो मैं ऐसे 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 मेरी यहाँ से लेके एकदम टो तक, हेड से लेके एकदम टो तक अपने आप को पूरा कवर कर लूंगी। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द प्यूपा स्टेज, वेयर द larva of the caterpillar start forming a web-like structure around its body to cover itself and the structure that is formed is called as a cocoon। ये जो oval shape का अंडे जैसा structure है ना उसको हम लोग cocoon बोलते हैं। and the color of the cocoon varies differently depend upon on what type of mulberry leaves the caterpillar is been feeding on। ये इसका जो कलर है cocoon का वो भी डिपेंड करता है किस पे, कि हमारा जो कैटरपिलर है वो कैसे मलबरी लीव्स पे फीड कर रहा है। तो कलर कैन जनरली बी फ्रॉम व्हाइट टू गोल्डन येलो। तो हमारा कलर कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, इट कैन बी स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाइट एंड इट विल टर्न टू द गोल्डन येलो। इसी के बीच का डिफरेंस में कोई भी कलर आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन what is the quality of the mulberry leaves it is feeding on। So we are done with the pupa stage। Now the last stage is the adult stage। See यहाँ पे उसने ककून अपने आजू बाजू वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है जो जिसको हम लोग ककून बोलते हैं, वो बना लिए हैं। एंड नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस ककून स्टेज द कैटरपिलर विल अंडरगो मेनी सेवरल चेंजेस। इसी ककून के अंदर ही वो बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस में जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर अ सर्टेन मिनिमम डेज ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर क्या होगा, द ककून विल ब्रेक्स अप। ककून क्या करेगा, उसमें क्रैक आ जाएगा like this and cocoon will break itself and open। cocoon क्या होगा, टूट के ब्रेक हो जाएगा और उसमें से क्या होगा, हमारा adult silk moth निकल के आ जाएगा। बहुत सारे चेंजेस टेक प्लेस कर रहे हैं तो प्यूपा या फिर कोकून के अंदर। फिर एक टाइम क्या होगा, 14-15 डेज के अंदर क्या होगा, ये जो कोकून है अपने आप ब्रेक हो जाएगा एंड व्हाट विल हैपन, इसमें से हमारे क्या होगा, अडल्ट निकल के आ जाएगा एंड इट विल change into a adult butterfly। So this is the life cycle of the silk moth। Okay, let me repeat once again। So the first stage of life cycle of silk moth is the egg stage, जहाँ पे हमारी फीमेल जो है 300 to 400 eggs lay करती है। And the larval stage ends up within 7 to 14 days। उसके बाद आता है हमारा larval stage, जो एग हैच होने के बाद क्या होता है, उसमें से लार्वा निकल के आता है। एंड लार्वा फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेज में टेंडर मलबरी लीव्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट स्टार्ट फीडिंग एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट कैन ईट और इट कैन हैव रफ और कोर्स मलबरी लीव्स आल्सो। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, द प्यूपा स्टेज इज देयर, जहाँ पे क्या होता है, अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जो कैटरपिलर है वो अपने आजू बाजू एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जिसको हम लोग कोकून बोलते हैं एंड इट्स कलर वेरीज फ्रॉम व्हाइट टू गोल्डन येलो। एंड द लास्ट स्टेज इज द एडल्ट स्टेज वेयर द कोकून ब्रेक्स अप। अंडर 14 to 15 days the cocoon undergoes drastic changes and after that the cocoon breaks up and the adult butterfly just released from the cocoon। So this is how the life cycle of silk moth take place। So students, I hope you understood what I have taught you about the life cycle of the silk moth। Okay, so in the next video we are going to discuss the topic how the production of silk is taking place। So till then, just do watch the video and if any question
queries there, we'll solve in the live session. Thank you so much.